जैसे कि बाइबल में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई। जैसे ही इस भाई ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इनको एक नया जीवन दिया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम तीरथ है। मैं जलंधर शहर का रहने वाला हाँ। मैं अपने जीवन की सब तो वड्डी गवाही देन जा रहा हाँ कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मैनू 17 साल पुराने नशियां ते वह विचार दे विचों आज़ाद किया। अज तो 17 साल पहले मेरे फ्रेंड सर्कल सीगे जिहड़े गलत नशे करते सी, गलत संगति विच सीगे ते उन्हां दे नाल जिद्दां उठनी बैठनी सी मेरी, ते सिगरटां वगैरह पींदे सीगे, दारू पींदे सीगे। मैं कहा यार मैं देखदा कि की करदे पे है ना, कि ये सिगरट दे विच है की है, कि क्यों पींदे नूं धुआं कढ़दे आ, की हुंदा दे नाल। ते इदां ही जदों मैं पहली बार सिगरट पीती तां थोड़ा सिर घुम्मिया ते जिद्दां नशा जिहा महसूस होया। फिर वो नशा मैं जदों महसूस होया तो उस तो बाद जिद्दां कि ना वो स्टार्टिंग हो गई। तो इदां करते करते फिर रोज़ मैनूं शाम नूं रात नूं एक सिगरट पीण दी आदत पै गई। सिगरट दे नाल नाल कि मैं जदों सिगरट पींदा सीगा मेरे घरदिआं नूं नहीं पता सीगा कि ये नशे करन लग पिया। तो मैं ड्रिंक भी करदा सीगा ते घर दे सारे सो जांदे हुंदे सी ते मैं उदों घरे जाना, सारे सो गए, मैं चोरी चोरी जाना। कई बार ज़्यादा नशा कर लैंदा सी तां गेटां नूं फड़ फड़ के जाना, कंधां नूं फड़ फड़ के जाना, तां घर दे सारे सुत्ते हुंदे सी, मैं चुप करके जाना ते सो जाना। नशे दे नाल नाल मैं व्यभिचार दे विच भी उतर गया सीगा। फिर गलत मूवीज़ देखनी भी शुरू हो गईयां। मैं महीने दा 10 तो 12 हज़ार रुपया कमा लैंदा सी, तां उहदे विच 7,000 घरे दिंदा ਸੀ, बाकी मैं नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ पर उधर जाके ज़्यादा वध गए। मैं एक दिन दे विच 2-2 सिगरटां दे पैकेट पीण लग पिया ते दारू जदों असीं पीण बैठदे सीगे 2-2 बोतलां पी जांदे सी इक्को दिन दे विच, इक्को घंटे दे विच। ते जिहड़ियां सिगरटां सीगीआं वो चाह दे नाल सवेरे उठ के भी सिगरट चाहीदी सीगी। इदां दीयां तलपां वध गईयां, मैनूं नशे ज़्यादा वध गए। तो फिर दोपहर नूं भी चाह पीनी ते जितनी वारी चाह पीनी उन्नी वारी सिगरट जरूर पीनी। एक महीने दे विच मैं बाहर दे मैं 30 तो 35 हज़ार ਜਾਂ 40 हज़ार मेरा बन जांदा सी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸੀਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਗਏ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ दारू ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਾਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀਏ। ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, दारू ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਡੇਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ दारू ਪੀਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ, ਨਮਕੀਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੂੰਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 22 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖੀ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। बोलो नशे की आत्मा, बोलो दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की गंदी आत्मा, कम आउट, आउट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते, पूरी चर्च कहे आमीन। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੁਮਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसा कि परमेश्वर अपने दासों पर अपनी गुप्त बातों को प्रकट करता था, वैसे ही परमेश्वर का वो अभिषेक आज भी काम करता है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਓਪਨ ਕੀਤਾ तो उस तो बाद मैनू ना एक वीडियो नज़र आई, मतलब कि सामने यकदम ते आ गई मेरे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕੱਚਾ ਮਾंस ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮਾंस ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਨੇਲ ਦਾ ਮਾंस ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾंस ਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਪ ਜਿਹੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮਾंस ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾंस ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾंस ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਉੱਠਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮਾंस ਮੰਗਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਰਨਾ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਲਬ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। 21 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਿष्यवाणी ਕੀਤੀ। सिस्टर को मैं देख रहा हूं, सिंपल हैबिट नहीं है खाने की। स्पिरिट ने तेरे को बोला और तूने कच्चा चिकन शुरू किया और अब तू कच्चा मांस खाने की तेरे को ललक होती है। ये एक डिलीवरेंस का मसला है, तुझे आगे आना है डिलीवरेंस के लिए। अगर तू चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा, तुझे ले हैंड के लिए आगे आना होगा। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद करेगा राइट नाउ। उस दिन परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ जो कुछ भी बोलिया ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਪੁੱਟ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਕ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। कच्चा मांस खाने की जिसे आदत है, और पसोई आपने बोला था ये सिंपल हैबिट नहीं है, ये एक स्पिरिट है जो आपको आगे आना डिलीवरेंस होगी। और बस ये कहते हैं कि 1 महीना पहले मैंने YouTube के ऊपर ऐसी कोई वीडियो देखी जिसमें कच्चा मांस था, और वो वीडियो देखने के बाद ये बहन लगातार वो कच्चा मांस खा रही थी और सपनों में भी जानवर इनका मांस खाते थे। इस तरह मेरी ओर देखो, come out in Jesus name, out। लेग्रो ना खुसमंदरे ना खाना ना बाशु खंदे लेब्रो सोथाना मा शक्रियांदना। You are blessed in Jesus name। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में सब कलीसिया। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां पर आकर आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका घराना, आपके साथ जुड़ी कोई भी चीज सेम वापस नहीं जाएगी। आज आपकी ब्लेसिंग का, आपकी गवाही का दिन है, आपके छुटकारे का, आपकी ब्लेसिंग का दिन है यीशु मसीह के नाम में। चर्च ब्रांचेस में भी जितने लोग मौजूद हैं अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। ये समय है टेस्टमनीज को रिसीव करने का, आत्मा में विश्वास के साथ, और आपने इन गवाहियों को ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। जब आप विश्वास के साथ सुनेंगे, रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जम्मू की। आपकी मैरिज कौन से सन में हुई थी?
जून 2021 में हुई थी। और आपके परिवार में पिछले 22 साल से, आपके इन-लॉज परिवार में पिछले 22 साल से बांझपन का श्राप काम कर रहा है। हाँ जी ब्रदर। ये कैसे, मतलब कौन कौन इसके नीचे आया, क्या हुआ, अपने परिवार के बारे में खुल के बताइए सब। 2003 को मेरी ननंद की शादी हुई और उनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और उनके घर पे कोई भी बेबी नहीं था। 2013 को मेरे जेठ की शादी हुई, उनके घर पे भी कोई बेबी नहीं था। तो 2021 में हमारी शादी हुई, हमारे घर में भी कोई बेबी नहीं था। फिर जब बेबी नहीं हो रहा था परिवार में तो लोग क्या बोलते थे? लोग बोलते थे कि बेबी कंसीव कर लो। तो फिर मेरी ननंद और जेठ ने बेबी कंसीव भी किया। ब्रदर आप बताएं कि आपके परिवार में जो ये कर्ज था, जो श्राप काम करता था, क्या क्या होता था आपके परिवार में? आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। मेरे बड़े ब्रदर जी हैं जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनको भी कोई बेबी नहीं था। और मेरी सिस्टर जो है उनको भी 20 साल हो चुके हैं शादी कर, उनको भी कोई बेबी नहीं था। और उसके बाद जब बहुत देर होगी शादी को, कोई बेबी ना होने के बाद उन्होंने बेबी को अडॉप्ट कर लिया। दोनों ने बेबी गोद ले लिया। जी, दोनों ने बेबी गोद कर लिया। जब प्रेगनेंसी उनको नहीं होती थी, उनकी बॉडी में क्या होता था, क्या प्रॉब्लम होती थी उनको, क्यों बेबी कंसीव नहीं कर पाते थे वो? उनको बहुत तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक्स भी होते थे और जिसके द्वारा उनको कभी भी कंसीविंग नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद जब हमारी शादी 2020 में हुई तो हमारे भी शुरू में हमारे भी बेबी कंसीव हुआ, लेकिन कंसीव होने के 3 महीने के बाद ही वो मिसकैरेज हो गया। तो उसके मिसकैरेज होने के बाद हमें भी बहुत सी स्ट्रगल्स करने पड़ी। मिसकैरेज होने का क्या कारण था? प्रेगनेंसी के टाइम क्या आपकी वाइफ को सपना आया था? जब भी इसको कंसीव हुआ तो उसके बाद एक दिन रात को मेरी वाइफ को सपना आया कि मेरा मिसकैरेज हो चुका है। तो सुबह जब अब उठे तो रियलिटी में मिसकैरेज हो चुका था, जो 3 महीने में था। और उसके बाद जब मिसकैरेज हो गया उसके बाद ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कम से कम 10 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। और इतने सालों में आपके परिवार में बेबी ना होने की वजह से, और आपके भी बेबी नहीं हो रहा था, लोग क्या बोलते थे आपको? लोग यही कहते थे कि इनके परिवार में बांझपन का श्राप है और ये बांझपन से गिरे हुए हैं, इसकी वजह से इनके घर में बेबी नहीं हो रहे हैं। और जब ऐसी बातें बोलते थे कि इनके घर में बांझपन का श्राप है, तो मन में क्या आता था, दिल में क्या बीतती थी उस समय? फिर तो उसकी वजह से हमारा परिवार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। किसी का मन भी अशांत नहीं था, हर कोई अशांति पड़ी रहती थी, किसी भी तरह की पीस नहीं थी हमारी फैमिली में। और इसी वजह से डिप्रेशन में आप चले गए। जी। और आपको भी कोई आस नहीं थी कि आपके बेबी होगा या नहीं होगा। जी। और जब लोग ऐसा बोलते थे कि आपके परिवार में उन दोनों ने बेबी अडॉप्ट कर लिया तो आप भी अडॉप्ट कर लो, ऐसा बोलते होंगे लोग बोलते थे, लेकिन हमने उस बात के ऊपर इतना गौर नहीं किया। हमने कहा परमेश्वर पे विश्वास रखा कि ये परमेश्वर के द्वारा हमारे घर पे जरूर होगा, तो इसलिए विश्वास पे हम बने रहे। सिस्टर आप बताएंगे, जब आप लोगों के बेबीज को देखते होंगे, बच्चों को देखते होंगे, उस समय मन में क्या आता था आपके? काश हमारे घर पे भी होता। आप जब भी ऐसा बेबीज को देखते तो मन में आपके आते थे ये चीजें। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हम जीवन दी गल्ला प्रोग्राम आता था, वो सुनते थे। उस वचन को जब इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के दास को, तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, फिर लगातार ये चर्च में आते रहे। फिर 6 मार्च 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने वंशों के श्रापों को खत्म होने के लिए जब प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे हम। सारे वंशों के श्राप कैंसिल हो गए, आप जाने वाले हो, कैंसिल हो गए, कैंसिल करवा के सारे वंशों के श्राप कैंसिल है। आमीन हो चाहिए, आशीष तुम्हारी है। मैंने कहा सारे वंशों के श्राप टूट जाए, बाय ब्लड बाय पावर टूट जाए। सिस्टर आप बताएंगे, जब आपने परमेश्वर के दास को द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके परिवार में, आपके जीवन में? उसके बाद मुझे वॉमिट हुई और मैंने बहुत हल्का फील किया और ऐसा लगा कि मुझ में से कुछ निकल के बाहर चला गया है। और जैसे दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने आपको आजाद किया, उन श्राप से परमेश्वर ने आपको आजाद किया, और उस प्रेयर को रिसीव करने के कितने दिन के बाद आप प्रेग्नेंट थे?
14 डेज के बाद। 2 हफ्ते के बाद जी। अब जब आपने टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी, तारीफ brother। करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर आप बताएं कि जब आपकी वाइफ ने आपको बताया कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, क्या रिएक्शन था आपका, क्या मन में क्या चल रहा था उस समय? फिर उस टाइम जो खुशी हमारे जीवन में थी, मेरे परिवार में थी, मैं खुद ही बयान नहीं कर रहा हूं। बहुत खुश थे हम सारे, बहुत ज्यादा खुश थे। ये आंसू जो देख रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं, और ये परमेश्वर का थैंक्स, परमेश्वर की तारीफ आपके हाथों से, आपके होठों से होने चाहिए कि परमेश्वर क्या क्या करने की सामर्थ्य रखते हैं, परमेश्वर किस तरह से ब्लेस करने की ताकत रखते हैं। जो इनके परिवार में कर्ज था, एक श्राप था बांझपन का, उस बांझपन के श्राप को परमेश्वर ने तोड़ा। जी पूरी तरह से तोड़ा। और प्रेयर जिस दिन रिसीव हुई उसके 2 हफ्ते के बाद, 14 दिनों के बाद आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थे। जी। उसके बाद क्या हुआ कि 19 मार्च 2022 को जब ये प्रेग्नेंट हुए तो इन्होंने ये प्रेयर की कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है, तू मेरे बेबी को सेफ रखेगा। फिर 19 मई 2022 को इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी से हाथ रखवा के अपने लिए प्रार्थना करवाई। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। और जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर, दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, बताइए आप। उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा सपना नहीं आया, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, मेरी प्रेगनेंसी सेफ रही और बेबी गर्ल्स के साथ 17 दिसंबर को बेबी गर्ल हमारे जीवन में आई। तारीफ करें एक बार जोर से, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, झूमते हुए, नाचते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, बड़ी गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। आप बताएं भाई, आप बताएं ये कितने साल के बाद आपके परिवार में बेबी हुआ? जी ब्रदर, उसके बहुत खुशी थी हमारे के परिवार में, इतना आनंद था कि हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि हम इस खुशी को जाहिर कैसे करें। जितने लोग हमें पूछते थे कि ये कैसे हो पाया, हमने कहा ये परमेश्वर के द्वारा हो पाया, जो केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। वही चिंता करता है जो हमारे जीवन में इतनी बड़ी आशीष को दे सकता है। और कितने साल बाद परिवार में बेबी हुआ आपके? 22 साल के बाद। 22 साल के बाद? जी ब्रदर। अभी लोग क्या बोलते हैं फिर आपको देख के, जब बेबी देखते हैं हाथ में? तो अभी जब लोग हमें देखते हैं वो खुद अचंभा करते हैं कि इतने सालों के बाद आपके घर में बेबी हुआ है, तो जरूर जो जिससे आप मानते हो उसमें जरूर कोई सामर्थ्य है। क्या क्या मैसेज देते हैं आप उनको, फिर क्या बताते हैं? हम सबको यही मैसेज देते हैं कि यीशु ही जिंदा खुदा है, उसके सिवा कोई जिंदा खुदा नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो आपको उद्धार दे सकता, वो केवल यीशु मसीह ही है। थैंक यू जीसस। सूचीवाद में हालेलुया, तारीफ करें इस वंडरफुल गवाही के लिए, इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। ये बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उस कर्ज को खत्म किया, 22 साल के बाद परिवार में बेबी को देखा। ये अमेजिंग टेस्टमनी है, ये परमेश्वर का काम है। एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन सब अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर, अपने हाथों को हिलाते हुए तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए सब बैठ जाएं, नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम बलराम है और ये लुधियाने से हैं। 31 अक्टूबर 2022 को इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक एक्टिवा इनमें ये खड़े थे, इनके साथ जोर से टकराई और ये नीचे गिर गए थे। भाई आप बताएं, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आप गिर गए थे, क्या हुआ उसके बाद? फिर ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਕਾਲੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 31/10/2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਠਾ ਕੇ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੰਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਦਰਦ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। 1 ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 5/3/2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਨਾਲ ਵੌਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ मैं वाकर छड़ के अपने गवाही देने वास्ते इत्थे आ गया। सब पहले तो तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 5 मार्च 2023 को ये भाई चर्च में आए थे और अमरजन सेक्शन में बैठे थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। देख रहा हूं खुदावंद के दूतों को आपको टच करते हुए, आप ऑयल लगाते हुए, आपके सिर को छूते हुए, चेस्ट को छूते हुए, पेट को छूते हुए। राइट नाउ हर तरह का शैतानी एलिमेंट जो भी है वो राइट नाउ आपकी बॉडी को छोड़े। वो कोई भी बीमारी है, जो भी है, वो शैतान की ओर से जो है, मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर से वो निकले। राइट नाउ कैच फायर, हड्डियां कैच फायर। और आप उस समय अमरजन सेक्शन में बैठे थे जी। जैसे प्रार्थना हुई, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? उसी समय मैं यहाँ उठ के चल के आया और यहाँ पर अपने बिना किसी सहारे के आप चल पा रहे थे जी। वॉकर आपने छोड़ दिया था जी। कितने डॉक्टर आपने पहले अपने ट्रीटमेंट में चेंज किए थे? 3। और कितनी बार आपका ऑपरेशन हुआ? आपका 3 बार ऑपरेशन होने के बावजूद, डॉक्टर चेंज करने के बावजूद भी आप पूरी अच्छी रीति से चल नहीं पाते थे जी। दर्द रहता था, लंगड़ा कर चलते थे जी ब्रदर। वॉकर का आप सहारा लेते थे चलने में, वो भी ज्यादा नहीं, 2 कदम चलते थे और फिर बहुत ज्यादा दर्द होती थी आपके। जी ब्रदर। प्रार्थना हुई, रिसीव किया, वॉकर छोड़ा, बिना सहारे के आपने चलना शुरू कर दिया जी। एकदम से आप बिल्कुल उस दिन से हील हो चुके हैं जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आप खुद चल के दिखाएं भाई, आप सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप उस भाई को देख रहे जिनके 3 ऑपरेशन हुए, वॉकर के सहारे से भी 2 कदम चल पाते थे, पर जैसे ही खुदा की सामर्थ्य ने छुआ, प्रार्थना को रिसीव किया, अमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, उसी समय खुदा ने छुआ और इनको इनकी शर्मिंदगी से आजाद किया। बिना किसी सहारे के ये चल पा रहे हैं, एकदम से उस दिन से बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद है, सब तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए खुदा के नाम को महिमा देते हुए सब जन। इस बहन का नाम लक्ष्मी देवी है और ये जम्मू के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज फरवरी 2016 में हुई थी। मैरिज के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। सिर्फ आप खुद बताएं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे, क्या होता था आपको उस समय? उस समय गंदे सपने आते थे, सपनों में खून वगैरह दिखता था, गंदे कपड़े दिखते थे और सांप दिखते थे और मुर्दे वगैरह दिखते थे। और सुबह जब उठती थी तो ब्लीडिंग हो जाती थी, मिसकैरेज हो गया होता था। जब मार्च 2020 में आप प्रेग्नेंट हुए तो आपको क्या सपना आया रात को? वही गंदे कपड़े वगैरह दिखते थे, तो उसके बाद मिसकैरेज हो गया। उसके बाद ही मिसकैरेज हो गया था? हाँ जी, ब्लीडिंग हो गई, हैवी ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। जब डॉक्टर के पास गए आपको तो आपके हस्बैंड लेकर, तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर? डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा खराब है और ये केस खराब हो गया है। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोला, आप रोने लग गए उस समय वहीं पे? हाँ, तो मैं निराश हो गई थी और परेशान हो गई थी। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे घर में बच्चा नहीं होगा। लोग क्या बोलते थे फिर? लोग बोलते थे कि ये इसके घर में कभी बच्चा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि होना ही नहीं है हमें बच्चा। और लोग आपको बांझ कहते थे उस समय? बांझ कहते थे कि इसके घर में बच्चे ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए उसके बाद फिर? डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दी थी और दवाइयाँ वगैरह खाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब 4-5 अलग अलग डॉक्टर्स के पास भी जा चुके थे? हाँ जी ब्रदर। दवाइयाँ दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था और ना ही प्रेगनेंसी कंसीव हो पा रही थी? हाँ जी ब्रदर। फिर कैसे आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? इधर हमारे रिश्तेदार आते थे, हम आए थे इधर 2021 में आए थे सितंबर। तो इधर पापा जी ने प्रेयर की थी और बोला था कि जिन
जिनके घर में बच्चे नहीं हैं वो अपना ऑयल अपने पेड़ पे लगाओ, और उनके घर में बेबीज होने जा रहे हैं। तो वही मैंने ऑयल अपने पेड़ पे लगाया और उसी समय परमेश्वर ने मुझे छुआ और टच किया कि मुझे हल्का महसूस हुआ। तो उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने चेकअप करवाया तो पॉजिटिव था। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि जिस दिन आप 5 सितंबर 2021 को यहाँ से प्रार्थना रिसीव करके गए, उसके बाद 1 महीने बाद चेक किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव था। तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 9 महीने तक संभाला और बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को। कितने साल के बाद ये बेबी हुआ? 6 साल के बाद। तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाएं और जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि जब 5 सितंबर 2021 को ये चर्च में आए, उस समय परमेश्वर के दास ने स्पेशल उनके लिए प्रेयर की जिनके पास बेबीज नहीं थे। तो आइए उस प्रेयर को भी अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जिनके पास बेबीज नहीं, अपने पेट पे हाथ रखो, उस ऑयल वाले हाथ को पेट पे लगाओ। और उसके बाद परमेश्वर ने 6 साल के बाद आपको बेबी के साथ ब्लेस किया। हाँ जी ब्रदर। जो लोग आपको पहले बांझ बोलते थे, आपको ऐसे ताने देते थे, अभी क्या बोलते फिर आपको देख के? वही बोलते थे कि इसने बच्चे होने ही नहीं थे तो इसने कैसे बच्चा हो गया। हम यही बोलते थे कि हम अपने परमेश्वर को मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा वही परमेश्वर है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। इस सुंदर गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये अमेजिंग टेस्टमनी है जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। एक बार जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोले, ऊंची आवाज में और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम प्रसन्नजीत पाल है और ये कोलकाता ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि जब ये 31 साल के थे तब से इन्होंने नशा करना शुरू किया और इनका नशा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि ये इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। और जब ये 15 साल के थे इन्होंने उस उम्र से नशा करना शुरू किया और लगातार ये नशा करते थे और ये रोज शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का नशा करते थे। और एक दिन में ये 1 बोतल शराब की, 24 बीड़ियां, 1 डिब्बी सिगरेट की पीते थे। इन्हें कोई भी होश नहीं होती थी और इनकी नशे की तलब इतनी ज़्यादा बढ़ती थी कि जब ये सुबह उठते थे सबसे पहले ये नशा करना शुरू कर देते थे। और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब महसूस होती थी। ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये पैसा नशों में उड़ा देते थे। और जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये दोस्तों से पैसे मांग मांग कर नशा करते थे और नशे की ओवरडोज लेकर ये अपने घर वालों से बहुत ज्यादा कलेश करते थे और घर से भाग जाते थे। इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी। इनके नशे के कारण इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती थी। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती थी। और फिर इनके घर वालों ने इनकी मैरिज कर दी कि शायद ये मैरिज के बाद सुधर जाएंगे, पर मैरिज के बाद इनके नशे और ज्यादा बढ़ने लगे और इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये बहुत सारी अन्य जगहों पर गए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिसके कारण ये भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को इन्होंने जहर खाकर मारने की कोशिश की। इनकी कंडीशन डे बाय डे खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर इनकी बहन ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च की मीटिंग्स को सुनना शुरू किया, लगातार कोलकाता ब्रांच में आना शुरू किया। और जब ये पहली बार चर्च में आए तो इन्हें बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि किस तरह परमेश्वर लोगों को डिलीवर कर रहा है नशों से, किस तरह उन्हें आजाद कर रहा है परमेश्वर के दास के द्वारा, तो इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी डिलीवर करेंगे। और 27 अक्टूबर 2022 को व्हाइट गारमेंट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान नशों को डांटा, आइए पहले हम उस नशे की प्रार्थना को सुनते हैं। मैं देख रहा हूं नशों से बाहर आते हुए जो लोग नशा करते हैं, अभी भी यीशु मसीह के नाम में नशे की दुष्ट आत्मा
मैं तुझे कमांड करता हूं, इनकी बॉडी को छोड़ो, निकल आ यीशु मसीह के नाम में। और इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। उस दिन ये कोलकाता ब्रांच में मौजूद थे और वहीं पे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। इन्हें अपनी बॉडी में बहुत गर्माहट महसूस हुई और उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव करने के बाद हर तरह का नशा इनको छोड़ के गया, हर तरह की दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गई। और आज 4 महीने 17 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से उस नशे से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे कोलकाता ब्रांच के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? धर्मराज गुप्ता। कहाँ के रहने वाले आप? बम्बई से। 3 साल से आपको लकवा का रोग था। हाँ। क्या हुआ था, ये क्या प्रॉब्लम थी, आगे क्या बढ़ती गई, तो आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में, कैसे चीज शुरू हुई थी ये? 6 दिन था हॉस्पिटल में और बाद में डिस्चार्ज हो गया है। आप काम क्या करते थे? ड्राइविंग करते थे। टैक्सी ड्राइविंग करते थे आप? और 3 साल पहले कार ड्राइव करते समय आपकी राइट साइड बाजू पूरी तरह से रुक गई थी। हाँ, मार दिया था। और राइट साइड की टांग भी रुक गई थी। आपकी फैमिली जब आपको हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? अपनी गवाही खुद बताएं खुल के सबको। डॉक्टर यही बोला कि ठीक नहीं होने वाला है, मुंह टेढ़ा हो गया था, आवाज नहीं आ रहा था, और इसके लिए कहा तो डॉक्टर बोला कहा तो नहीं ठीक होएगा। डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी चल फिर नहीं सकेंगे। हाँ। हॉस्पिटल में एडमिट रहे, टोटली बेड के ऊपर थे। हाँ। उस समय फिर कौन संभालता था? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था कैसे जाते थे फिर? एक्चुअली क्या है कि हमारा फैमिली का को तो लेके जाता था, लेके आता था, बेड पे रहता था, बेड पे रहने के बाद में चर्च के नाम से सुनता था। आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है इस भाई के जीवन में, जो काम परमेश्वर ने किया। इस भाई को डिसएबिलिटी का जो सर्टिफिकेट था, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट इनको दे दिया था, यानी उन्होंने घोषित कर दिया था कि ये जो व्यक्ति हैं ये विकलांग हैं और ये चल नहीं सकता है। सर्टिफिकेट विद प्रूफ आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर अगर आप इसको देखें, और गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया। एक और सर्टिफिकेट है, उसको बड़ी स्क्रीन पे हम देखेंगे, जो 3rd सर्टिफिकेट एक और इनके पास था, कि उस पे ये वाला, इस पे ये जो था वहां की जो रेलवे है, रेलवे वालों ने भी इस भाई को ये सर्टिफिकेट इशू किया था इसलिए ताकि ये विकलांग है और इनकी हाफ टिकट लगे। ये वहां की गवर्नमेंट जो रेलवे का काम करते हैं वहां पे जो कर्मचारी, उन्होंने इनको ये वाला सर्टिफिकेट दिया था। और जो दूसरे 2 सर्टिफिकेट है ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था, इशू कर दिया था इनके लिए ये सर्टिफिकेट कि ये भाई विकलांग है और ये नहीं चल सकता है, ये बेड पे रहता है, और इसीलिए ये भाई बेड के ऊपर थे और पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर निर्भर थे। डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट इनको मिल चुके थे और डॉक्टर कहते थे कि सारी उम्र आप ऐसे ही रहेंगे। हाँ, सही ऊपर ऐसे ही रहेंगे। ये बात आपको कितने डॉक्टर्स ने बोली होगी? कम से कम 30 डॉक्टर बोले थे। और ये 30 जो डॉक्टर थे कहाँ के थे? यूपी के थे, महाराष्ट्र के थे, ज्यादा महाराष्ट्र के थे। और वहां के डॉक्टर्स ने ये आपको डिक्लेयर कर दिया था कि आप सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही रहेंगे। और लगातार दवाइयां आप खाते रहे, लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी लगा दिया, और आपकी हालत को देखकर आपके परिवार वाले भी हमेशा रोते रहते थे, निराश रहते थे। हाँ, निराश रहते थे। आपके मन में क्या आता था? आपको क्या लगता था कि क्या होगा? हमारा मन में यही आता था कि जहर खा लूं, मर जाऊं। जहर खा के मर जाऊं? हाँ। क्यों ऐसा क्यों मन में आता था? ऐसा होता था। इस वक्त भी ये भाई अपनी उस पुरानी लाइफ को अगर याद करते हैं तो आंखें भर आती है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में ये भाई रह चुका था। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, रेलवे वालों ने डिक्लेयर कर दिया, डॉक्टर्स 30 डॉक्टर वहां के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने डिक्लेयर कर दिया। तो अगर इतने लोगों ने एकदम से बोल दिया होगा तो व्यक्ति का तो अंदर से वो टूट ही चुका होगा, और वही हाल इस भाई का हुआ, ये अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे। और आप बेड के ऊपर ही रहते थे घर पे भी? सब कुछ बेड पे ही होता था। खाना, टॉयलेट, बाथरूम, ये वो सब चीज बेड पे ही होता था। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? एक्चुअली क्या है कि हम यूट्यूब में देखते थे खामरा चर्च में, और भाई ने आके बताया कि खामरा चर्च जाओ, तभी आया। भाई ने बताया चर्च के बारे में, फिर
क्या हुआ? आया फिर सेक्शन मेरे सेक्शन बैठा था, वहाँ ले हैंड हुआ तो वो गर्माहट महसूस हुआ। आप कहाँ पे बैठे थे चर्च में जब मौजूद थे? इमरजेंसी सेक्शन में? इमरजेंसी सेक्शन बैठे थे। 11 दिसंबर 2022 को जब ये भाई चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, और जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की, हड्डियों के रोगियों के लिए स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर की, तो इस भाई ने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करवाया। तो आइए पहले परमेश्वर के दास की तरह हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह की बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाएं। सब तरह के अधरंग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। सब अधरंगी चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब ये प्रेयर हुई उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? पहली बार चर्च में आए थे, बॉम्बे से। बॉम्बे से फर्स्ट टाइम चर्च में आए, जब प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ आपके शरीर में, ये बताएं आप। शरीर में गर्माहट महसूस हुआ है और चलने फिरने लगा। फिर अकेला आया हूँ, अभी 3 मार्च को आया हूँ, 4 अप्रैल को जाना है। और जब आपने अपने आप को चेक करके देखा कि आप चल पा रहे, आप हैरान नहीं हुए उस समय? खुशी हुआ, बहुत बहुत चल रहा हूँ। उसी टाइम जैसे ही परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, पहले तो आप खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल गवाही के लिए कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है इस भाई के जीवन में। के पूरी तरह से ये भाई अगर आज आपके सामने खड़े हैं तो ये अपने आप में ही एक मिरेकल है। ये अपने आप में एक मिरेकल है कि आपके सामने खड़े हैं, बोल पा रहे हैं और अपनी गवाही खुद बोल के दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मिरेकल है। और जैसे ही परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। उस दिन इनकी इंस्टेंट जो हीलिंग की टेस्टमनी हुई थी, उस गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। बहुत बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। फर्स्ट टाइम ये बॉम्बे से आज चर्च में आए और 3 साल से कहते हैं इन्हें लकवा का रोग हुआ था और तभी से एक साइड पूरी तरह से रुक गई थी और चल नहीं पा रहे थे, टोटली स्ट्रेचर पर थे। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। जैसे ही आपने बोला कि जितने भी पैरालाइज्ड के रोगी परमेश्वर का आत्मा ने टच करे, इमरजेंसी सेक्शन से ये भाई उसी समय हील हुआ और इस भाई ने स्ट्रेचर को छोड़ के चलना शुरू कर दिया है। आप भाई चल के देखें जरा, चलिए। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, जीवित परमेश्वर की महिमा में जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को धन्यवाद। थैंक यू जीसस बोले परमेश्वर के इस बड़े और अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, उसके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप उस भाई को चलता हुआ देख पा रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये नहीं चल पाएंगे। इनके जो सर्टिफिकेट्स है, उन सर्टिफिकेट्स को भी हम देखेंगे साथ में हाफ स्क्रीन के ऊपर कि जो गवर्नमेंट ने इनको सर्टिफिकेट दिए थे जिसपे साफ साफ लिखा गया था वहां पे कि ये पूरी तरह से डिसेबिलिटी में है और ये नहीं चल पाएंगे। वहां की जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है और वहां के जो सेंट्रल रेलवे है उसने भी इनको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया था कि इनकी हाफ टिकट लगेगी। किस कारण के सरकार ने, महाराष्ट्र की, वहां की बॉम्बे की सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये भाई ये चल नहीं पाएगा, ये बेड के ऊपर है, पूरी तरह से डिसेबल है। आप उस भाई को चलता हुआ देख पा रहे हैं, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और थैंक यू जीसस बोले परमेश्वर के बड़े काम के लिए, अद्भुत हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस समय जितने भी लोग ब्रांचेस में हैं या आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप चल नहीं पाए, आप व्हीलचेयर के ऊपर हैं, शिकंजों के सारे हैं, व्हीलचेयर छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या पूरी तरह से बेड के ऊपर है, डोंट वरी, केवल विश्वास करें। ये भाई पहली बार चर्च में आया था उस दिन, फर्स्ट टाइम, पहली बार, और पहली बार ही परमेश्वर ने ऐसा छुआ कि वो सारी बीमारी, सारी शर्मिंदगी, सारे रोग इसके दूर कर दिए और आज ये हील होके आपके बीच में खड़ा है। आपका फेथ 7वें आसमान तक जाना चाहिए, आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। और थैंक यू जीसस बोले तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज 3 महीने से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। कपूरथला ब्रांच की नेक्स्ट गवाही है। इस भाई का नाम कुलवीर है और इनकी गवाही है कि ये एक
बिजली का काम करते हैं और 3 साल पहले ही काम करते वक्त ये 27 फुट के खंबे से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी कमर में बहुत भयानक चोट आई थी और ये बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे थे। और जो इनके साथ में काम करने वाले थे वो तुरंत इन्हें हॉस्पिटल पर लेकर गए और जब डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुके हैं और डॉक्टर ने इनको बेल्ट लगाने के लिए बोला और इन्होंने बेल्ट लगाई, लगातार मेडिसिन खाई और ये पूरी तरह से ये बेड पर आ चुके थे। ये कोई भी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे, हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, फिजियोथेरेपीज करवाई, मालिशें करवाई, हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये भाई पहली बार खामरा चर्च आए तो इनका विश्वास बना कि जिस तरह परमेश्वर इन लोगों को हील कर रहा है, हड्डियों के रोगों से आजाद कर रहा है, तो मुझे भी परमेश्वर हील करेगा, आजाद करेगा। और 5 मार्च 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ऑनलाइन चर्च, अपनी बॉडी को छुओ राइट नाउ, क्योंकि राइट नाउ इस वर्शिप के नीचे आपको हील होता हुआ देख रहा हूं, मस्से से भरता हुआ देख रहा हूं। और ये भाई उस दिन कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, कपूरथला ब्रांच में परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। आज कई दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुका है। इन्होंने उस बेल्ट को उतार दिया है और ये हर तरह का काम कर पा रहे हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। इस सिस्टर का नाम मंजीत कौर है और ये जलंधर से हैं। इनकी गवाही ये है कि पिछले 5 साल से इस बहन को अस्थमे का रोग हो गया था और उस रोग के कारण इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सिस्टर आप खुद बताएं उस रोग के कारण कैसे हालात थे आपके? मैं तो एक कदम भी तुर नहीं सी हुंदा, मैं जब चलदी सी तो मैंने बहुत साह चढ़दा सीगा। उस बीमारी के कारण जैसे जैसे वो बीमारी बढ़ रही थी आपकी हालात जो थे वो खराब हो रहे थे। हाँ जी, चलना फिरना दूर की बात, लेटना और बैठते समय भी आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। आप लेट नहीं पाते थे अच्छे से नहीं। और बैठते भी सांस फूलती थी। हाँ जी। क्या क्या फील करते थे आप उस समय? समय मैनू बहुत औखा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, मैं बहुत ਮੈਨੂੰ तकलीफ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। आपको ऐसा लगता था कि अभी बस सांस रुक जाएगी और मेरी डेथ हो जाएगी, एकदम से कंडीशन ऐसी हो जाती थी आपकी? क्या क्या मन में आता था उस समय ऐसे जब इतनी हालात खराब हो जाती थी आपके? बहुत मैं मतलब मेरे तो पैसे भी नहीं सी ਹੁੰਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ, मैं हॉस्पिटल नहीं सी जा सकती। इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, पैसे ना होने के कारण कई बार तो ये डॉक्टर के पास भी मेडिसिन लेने के लिए भी नहीं जा पाते थे। सोते समय बैठते समय भी इतनी सांस फूलती थी कि ये कहते मुझे ऐसे लगता था बस अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये बीमारी मुझे खत्म करके ही छोड़ेगी। फिर सिस्टर आपको उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया, आपने चर्च आना शुरू किया उनके कहने पर। इस बहन ने लगातार चर्च को अटेंड किया, मीटिंग को देखना शुरू किया, गवाहियां सुनी, वचन को सुना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। इन्हें लगा कि जैसे परमेश्वर सालों के रोगों से लोगों को आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है, ऐसे लोग जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वो हील हो सकते हैं, तो परमेश्वर यहां से मुझे भी चंगा करेगा, मुझे भी हील करेगा। लगातार मीटिंग देखते रहे। 31 दिसंबर 2022 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में ये चर्च में थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं कमांड करता हूं दमा तुम्हें छोड़ के चला जाए, कमांड करता हूं बीमारियां तुम्हें छोड़ के चली जाए, कमांड करता हूं रोग तुम्हें छोड़ के चले जाए। सिस्टर आप उस दिन चर्च में मौजूद थे, हाँ जी। आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मैनू हल्का महसूस होया। आपने अपने आप को चेक किया? हाँ जी, मैं दौड़ के चेक किया तो मैं बिल्कुल ठीक सी। कोई सांस नहीं फूल रही थी आपको?
एकदम से एक आपकी बॉडी हल्की हो चुकी थी और उस रोग से आप बिल्कुल हील हो चुके थे। कितने समय से ये रोग था आपको? 5 साल तो। और जैसे प्रार्थना हुई उसी समय आपने अपनी बॉडी को हल्का महसूस किया और सांस एकदम से सही रीति से आपको आ रही थी। आप दौड़ के अपने आप को चेक कर लें। आप देख सकते हैं उस बहन को 5 साल से कहते हैं कि चलना उठना बैठना दूर की बात है, बैठते समय ही लेटते समय भी मेरी हालत जी थी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। और ये आपके सामने दौड़ रहे हैं क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इनके जीवन में अद्भुत रीति के साथ खुदा ने अपने दास के द्वारा काम किया और उस रोग से इन्हें आजाद किया, जिस रोग के कारण ये सोचते कि बस ये रोग मुझे खत्म करके छोड़ेगा। एकदम से ये बहन उस रोग से हील हो चुकी है। सब थैंक्स करें हाथों को उठाते हुए, ताड़ियां के साथ होठों को खोलते हुए, धन्यवाद देते हुए जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद है सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम साजन है और ये अमृतसर की गवाही है। इनकी गवाही है कि जब ये 14 साल के थे तब से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और पिछले 10 साल से ये नशा करते थे। ये अपने गली मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर नशा करना इन्होंने शुरू किया। पहले तो ये सिर्फ सिगरेट का नशा करते थे और धीरे धीरे इनका नशा बढ़ता जा रहा था और ये डेली शराब, सिगरेट, भुक्की, भांग, गांजा, अफीम सारे सब तरह का ये नशा करते थे। ये भाई एक दिन में आधी बोतल शराब की, 1 पैकेट सिगरेट का और सुबह उठते ही ये सिगरेट और भांग की गोलियों का नशा करते थे। ये भाई पूरी तरह से ये नशे में धुत रहते थे, इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी। पूरी रात ये अपने दोस्तों के साथ ये नशे करते थे और सारी रात ये बाहर ही रहते थे। इनके नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि अगर इनके पास पैसा नहीं होता था नशे करने के लिए तो ये घर से चोरी पैसे निकालकर नशा करते थे। ये आते जाते लोगों को लूटते थे, उनके हाथ से मोबाइल, पर्स छीनते थे और ये इस तरह से ये नशा करना इन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे इस नशे के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए। इनके बाहर गलत संबंध थे, पूरी रात ये फोन पर गलत बातें करते थे, डेली ये फोन पर गलत मूवीज देखते थे। इनकी पूरी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके रिश्तेदार भी इनको पसंद नहीं करते थे और नशा और व्यभिचार के कारण इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे और इनकी मदर जो पहले से ही खामरा चर्च आते थे वो लगातार इनके लिए प्रार्थना में बने रहे, लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करते थे। उनका विश्वास परमेश्वर पर था और 17 फरवरी 2022 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। नशे की दुष्ट आत्मा निकला, कमांड करते हुए विचार की आत्मा निकला, नशे की दुष्ट आत्मा निकला, जादू की आत्मा निकला, बीमारी की सब आत्मा निकला। और इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को ऑनलाइन अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और आज 1 साल 29 दिन हो चुके हैं। ये भाई टोटली फ्री है। इन्होंने कोई नशा नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, हर तरह का दुष्ट का आत्मा इन्हें छोड़ के जा चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं और आज इन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया है। इन्होंने बैप्टिज्म दिया है और ये डेली इवेंजलिज्म करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप सभी जानते हैं कि ये डिलीवरेंस वीक है जहां पे परमेश्वर ने अपने दास को कहा है कि मैं तेरे लोगों को डिलीवर करूंगा। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे नशे में बैठे हैं, अगर आप नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो आज उस नशे का, उस व्यभिचार का आखिरी दिन है। आज आपके छुटकारे का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? राजविंदर। कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? चोला साहब। इनकी बहुत बड़ी गवाही है कि 23 जनवरी 2023 को ये बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। ये साथ में इनके सिस्टर आए हैं। सिस्टर आप बताएं कि 23 जनवरी 2023 को जब ये सीढ़ियों से नीचे गिर गए तो क्या हुआ? इनके सिर में जब चोट लगी क्या हुआ? खुल के बताएं इनकी गवाही को आप। सीढ़ियों ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਕਾਫੀ ਸਿਰ ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ।
ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ MRI ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ MRI ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ तो उन्होंने बोला कि क्लॉट भी काफ़ी ज़्यादा जम गया और पसलियाँ भी टुट गई, 6 ਦੀਆਂ 6 ही टुट गई ਸੀਗੀਆਂ इधर खब्बी साइड दियाँ। और बाद ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, पर मैं प्रभु ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। डॉक्टर ने इनको कितने घंटे का टाइम दिया था? 72 घंटे का। और उन्होंने बोला अगर इनको होश आ भी गया तो इनकी डेथ हो सकती है या ये कोमा में जा सकते हैं। जी ब्रदर। जब डॉक्टर ने ऐसा बोला उस समय आपकी हालत क्या थी, आपका परिवार उस समय क्या कैसी कंडीशन थी आपकी? ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ। पर मैं उस टाइम ਤੇ मैं मम्मा ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ मम्मा नहीं रो ना, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ प्रेल करो, बस ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रेल करन दाएगा। फिर इन्हें कौन संभालता था उस समय? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता या कुछ खाना पानी देना होता, कैसे कौन संभालता था? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ही देखदी ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ मम्मा देखदे ਸੀਗੇ। और टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था? जी ब्रदर। इनको केवल थोड़ा सा लिक्विड देते थे, वो भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, उसी समय इनको उल्टी आ जाती थी। जी ब्रदर। और लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर लग चुके थे। जी ब्रदर। फिर कैसे चर्च के बारे में इनको पता चला? ब्रदर मैं ऑलरेडी पहले ही वैसे चर्च में आंदी पई ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 संडे लेके आई, 5वें संडे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रभु ने हील किया। जो खामरा चर्च की अमृतसर में ब्रांच है वहां पे इनको जब लेकर गए तो 5 मार्च 2023 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। उस प्रार्थना को हम देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। देख रहा हूं खुदावंद के दूतों को आपको टच करते हुए, आप पर ऑयल लगाते हुए, आपके सिर को छूते हुए, चेस्ट को छूते हुए, पेट को छूते हुए। राइट नाउ हर तरह का शैतानी एलिमेंट जो भी है वो राइट नाउ आपकी बॉडी को छोड़े। वो कोई भी बीमारी है जो भी है वो शैतान की ओर से जो है मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर से वो निकले राइट नाउ। कैच फायर, हड्डियां कैच फायर, ब्लड कैच फायर, लीवर कैच फायर, किडनीज कैच फायर, ब्रेन कैच फायर। तारीफ करें एक बार परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उस समय जब ये प्रार्थना हो रही थी आपके सिस्टर व्हीलचेयर के ऊपर थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद इनकी बॉडी में? ये ब्रदर जकदम उठे और जकदम ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। और आप पूरी तरह हैरान थे उस समय? जी ऐसे शौक हो गया कि ये दीदी बिल्कुल वधिया चल रहे हैं आगे। तारीफ करें एक बार परमेश्वर का, थैंक्स करें। और उसी दिन जब परमेश्वर ने इनको हील किया, ये बहन को उसी टाइम अमृतसर ब्रांच में हीलिंग की टेस्टमनी हुई, गवाही हुई थी। आइए उस गवाही को भी अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अमृतसर चर्च ब्रांच से राजविंद्र कौर की टेस्टमनी के 1.5 महीने पहले ये बहन का एक्सीडेंट हुआ था, नीचे गिरे थे और इनके दिमाग में ब्लड के क्लॉट्स जम गए थे, लेफ्ट साइड की पसलियां टूट गई थी, आईसीयू में एडमिट थे। डॉक्टर ने बोला कि अगर इन्हें होश नहीं आया तो ये मर सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। और आज विश्वास के साथ इनके परिवार इनको उठा के व्हीलचेयर के जरिए अमृतसर ब्रांच में लेकर आया। और जैसे ही आज इन्होंने परमेश्वर के दास की तरह बोले वर्ड को रिसीव किया, 1.5 महीने के बाद ये पहली बार बहन अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए व्हीलचेयर से उठे हैं और इंस्टेंटली परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। सिस्टर आप चल के दिखाएं, चलिए जरा तारीफ करें सब, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोलते हुए इस चंगाई के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको चंगा किया और आज ये बहन पूरी तरह से हील है।
किसी व्हीलचेयर के सहारे की जरूरत नहीं है, कभी उसके बाद इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और पूरी तरह से ये बहन हील होके आपके सामने खड़े हैं और परमेश्वर ने इनको चंगा के एक तरह से नया जीवन दिया, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि इनकी डेथ हो सकती है, ये कोमा में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं उसके कोड़े खाने से अब चंगे हो चुके हैं, तो आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी डिलीवरेंस, आपके छुटकारे का दिन है। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम अशोक गुप्ता है और ये यूपी से हैं और इनकी गवाही ये है कि पिछले 18 साल से इनको डायबिटीज का रोग था। भाई आप खुद बताएं इस रोग के कारण आपका जीवन कैसा था, कैसे कैसे आपके हालात में इनके रोग के कारण बहुत दिक्कतें परेशानी क्या क्या थी आपकी जीवन में? हम अपनी एक एक रात घुट घुट के रो के जी रहे थे। हम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते, ऑनलाइन अंकुर नरोला जी का प्रोग्राम देखते थे, रात पूरी रात। एक दिन उन्होंने की मीटिंग में चल लिया था। आप ये बताएं कि इस रोग के कारण आपको कौन कौन सी परेशानी आ रही थी? भूख बहुत ज्यादा लगती थी? भूख ज्यादा लगती थी, बार बार यूरिन के लिए आपको वॉशरूम जाना पड़ा? यूरिन दिन भर में 10 बार, कम से कम दिन में 10-12 बार आप यूरिन के लिए जाते थे बार बार? यस। और आपका बीपी जो था वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता था, 220 230 मरने की कगार पे थे। और आपको उस समय जैसे आपको चक्कर आते थे, आप गिर जाते थे और आपके परिवार वाले उठा के उसी समय आपको हॉस्पिटल में लेके जाते थे? हॉस्पिटल ले जाते थे, वहां डॉक्टर देखता था, थोड़ी सी छोटी सी गोली दे के भेज देता था, फिर चले आते थे। दूसरे दिन फिर वैसे, तीसरे दिन फिर वैसे। और इस तरह से आप इस रोग के कारण कमजोर होते जा रहे थे? कमजोर हो गए थे, शरीर में रास्ता नहीं चली जा रही थी। आपका ब्लड जो था वो बिल्कुल कम हो चुका था, कम हो गया था, 3 पॉइंट रह गया था, आखिरी स्टेज थी, मरने वाला मैं था। एकदम से कंडीशन आती थी कि बस अब भी खत्म है, तो अब भी खत्म, सांसें रुक जाएगी, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, प्रभु को याद करते थे। आपने इस सालों में 18 साल से ये रोग था आपको? हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले हैं? कम से कम 50 डॉक्टर बदल दिए, और हो सकता है 70-80 भी हो गए हों, हमें कोई गिनती नहीं है। और लगातार इन 18 सालों में आपने हर एक ट्रीटमेंट किया है, मेडिसिन का इलाज करवाया है? बहुत कुछ खाया, घास धतूरे भी खाए, जिसने जो बता दिया वो खाया, कोई आराम नहीं मिला। और जब कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था, आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था, आपको क्या आता था उस समय मन में आपके? हमारे मन में एक ही बात आती थी, एक बार पापा से मिलने, हम ठीक हो जाएंगे। और सब थैंक्स करें, पहले तो तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि आपका विश्वास आपके लिए आपकी जिंदगियों को, आपके मार्गों को आसान करता है, आपको चंगाई और हीलिंग की ओर लेके जाता है। चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? ऑनलाइन यूट्यूब पे हम रात को पूरी रात सुनते थे परमेश्वर के दास के। एक तो वो सुना था, याद नहीं आ रहा, उठ जा, वहीं से हम दीवाने हो गए, उठ जा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि ये लगातार मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, आराधना करते थे, और ये उन वर्ड को, उन वर्शिप सॉन्ग को अपने आनंद में परमेश्वर के लिए आराधना करते थे घर बैठ के, और लगातार मीटिंग को आप इस तरह अटेंड करते रहे। 19 फरवरी 2023 को जब आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। इन्होंने कहा था, फादर ने, अपनी छाती पे हाथ रख लो, डायबिटीज, शुगर, बीपी जो भी हो, जो परेशानी हो, और सुनते सुनते हम उछल पड़े, कूद पड़े, हमने क्या दिया, ठीक हो गए, हम तो ठीक हो गए। उसी दिन से जितने ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांच में, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरों की गवाही को देखते हैं, उनके जीवन में एक एक दिन, एक एक पल कैसे उन्होंने व्यतीत किया है, ये उनको पता है। कई बार अपने हालात को बयान करते समय लोग भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कैसे जिंदगी व्यतीत की है। आइए पहले हम उस अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। 19 फरवरी 2023 को जब ये भाई मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी।
आपको अंगीकार करना है कि मैं छुटकारे के लिए इस ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई करता हूं। सारी बीमारियों से आजाद होने के लिए अब उस ऑयल से टच करो, अपने स्टमक को टच करो। आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या फील, क्या महसूस किया आपने? अरे भैया जन्नत मिल गई। हमने यहाँ लिया परमेश्वर के दास पूरे बट में। परमेश्वर हमको नरोला के मुकाबले कोई नहीं है। आज हमें नंबर 11 मिला। हम अंको नरोला हम दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। हमने फील्ड में सेवा करी, हमने गवाही भी दे दी। हमने वो बोल दिया यहाँ हेलीपैड बनेगा, यहाँ हेलीपैड बनेगा, बनेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने समय से, कितने दिन हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है, अब 1 महीना होने जा रहा, 3 दिन कमती है। और उसके बाद से आपकी जो रोग था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है? कोई मेडिसिन नहीं खाते आप? अबे 3 गवाही और है मेरे पास। और अब आपका ब्लड भी जो है वो बढ़ चुका है, एकदम से आप हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। 18 साल उस रोग में रहे हैं और कहते हैं 60 से 70 डॉक्टर बदले हैं पर कहीं से आराम नहीं मिला है। पर जब ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास के मुख से निकलने वाले वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ, एकदम से ये भाई हील हो चुके हैं। एक कदम भी चलते थे चक्कर आते थे, कहते वो 3 ग्राम ब्लड रह चुका था, अब 11 ग्राम हो चुका है। एकदम से कोई काम करने में, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर ने हील कर दिया है। थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद देते हो सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। क्योंकि जीवत हजूरी में जब आप आते हैं, परमेश्वर जानता है आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ कैसी है, और परमेश्वर आपको हील करता है, चंगाई देता है, वो आपको चंगा करता है। डॉक्टर कुछ भी कहें, लोग सालों बीमारियों में रहते हैं, रोगों में रहते हैं, मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टरों से कहीं कुछ नहीं होता, जवाब दे दिए जाते हैं और आस ही जीने की छोड़ देते हैं। कहते हैं बस ये रोग अब खत्म करके छोड़ेगा। पर परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, खुदा फिर से नई जिंदगी देता है, एकदम से उन्हें खड़े कर देता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इन सब गवाहियों के लिए, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें जो आपके सामने खड़े हैं। सिस्टर अलीशिया इनका नाम है। सिस्टर आप बताएं कि 2 साल से आप कनाडा जाना चाहते थे, आप ट्राई करते थे, क्या प्रॉब्लम रहती थी इसमें? आफ्टर +2 मैं कनाडा जाना चाहती थी, बट आइल्स की जब आइल्स करते थे तब एग्जैक्ट मार्क्स नहीं आ रहे थे मेरे। एक में 6 ओवरऑल, ईच में 6 चाहिए, एक में 5.5 थे और उसी में अप्लाई किया था। बट 2022 में अप्लाई किया, रिफ्यूज़ल आई। बट आफ्टर परमेश्वर के दास से जब सीड बोने के लिए बोलते थे तो उस वर्ड को रिसीव करते थे और अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के वर्ड को रिसीव करते थे। उसके बाद नवंबर में 31 को फिर से अप्लाई किया कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए और आफ्टर 17 डेज परमेश्वर ने मुझे कनाडा के स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। आप जानते हैं कि ये बहन ने बताया कि इसका पहले रिफ्यूजल लग चुका था और ये बहन जब चर्च में आए, इन्होंने बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। और सचमुच जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारे बंद रास्तों को खोलता है, परमेश्वर शैतानी उन चीज़ों को दूर करता है, रिफ्यूजल को दूर, रिजेक्शन को दूर करता है। और ये बहन को परमेश्वर ने कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? मेरा नाम लुकस है, फिरोजपुर से रहने वाला हूँ मैं। 29 साल से आपकी फैमिली में 9 मेंबर्स एक ही कमरे में आप रहते थे? जी सर। क्या कंडीशन थी आपकी उस समय? कंडीशन ऐसे थी कि जैसे अभी मकान भी कच्चा था हमारा, तो छत भी चौती थी, पानी टपकता था, नीचे बर्तन रखते थे, तो बहुत ही परेशान थे। तो रिश्तेदार भी आते जाते थे तो वो रहते नहीं थे, थोड़ी देर रुकते थे, चले जाते थे। तो कहते थे कि इनके घर में रहने के लिए जगह तो है नहीं। तो बहुत ही परेशान थे हम। तो सोच रहे थे कि घर बनाने के लिए जैसे सोचते थे तो, लेकिन बनता नहीं था। लेकिन फिर जब मम्मा जी ने सीड बोने के लिए हमें वचन में बताया तो सीड बोते रहे, पूरी सैलरी से मतलब कि बोते रहे।
तो जीसस ने आज हमें बहुत ही बड़े घर से ब्लेस किया है और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा घर इतना बड़े बनेगा। और आज हम 3 मंजिल घर के साथ ब्लेस होकर प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। कितने साल के बाद अपना घर आपको मिला ये? 5 साल के बाद मिनिमम घर ब्लेस मिला। और पिछले 29 साल से आप एक घर में जिसमें रहते थे, एक ही कमरा था आपके पास? हाँ जी। और जो अब परमेश्वर ने आपको घर के साथ ब्लेस किया, जब आपने बीज बोना शुरू किया तो 3 मंजिली घर के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस किया। हाँ जी। कितने कमरे हैं, क्या क्या है इसमें बताइए? कम से कम 10 कमरे हैं, 4 बेडरूम है, लैटरिन बाथरूम, 3 लैटरिन बाथरूम है, 3 किचन है, 3 ड्राइंग रूम है, 2 स्टोर है, 1 प्रेयर रूम है, 2 लॉबी है। तो उसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमें ब्लेस किया है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये ताकत है बीज बोने की, ये बीज बोने की ताकत है। उस फोटो को अगर हम दोबारा से देखें, जब इनके पास जो इनका पुराना घर था एक साइड के, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कमरा था, उसको घर नहीं आप कमरा ही बोले। और कितने आपके परिवार के मेंबर थे उसमें रहते? 9 फैमिली मेंबर है, एक ही कमरे में। हाँ जी। और इनके नए घर की अगर फोटो को देखें तो ये तो एक होटल से कम नहीं है, ये तो आलीशान घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। इनका नाम श्री पाल है और पिछले 25 साल से ये भाई अपना प्लॉट खरीदना चाहते थे। आप बताएं, जब भी पैसे इकट्ठे करते थे तो क्या प्रॉब्लम आती थी फिर? मेरा नाम श्रीपाल मंडलोई है और मैं मध्य प्रदेश भोपाल शहर का रहने वाला हूँ। मैं वैसे तो 25 साल से क्रिश्चियन हूँ, मगर मैं 2018 से इस मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद हम बहुत सालों से एक छोटे से मकान में रह रहे थे और हम एक प्लाट लेना चाह रहे थे, मगर हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं होता था। अगर जो भी कुछ जुड़ता था वो हमारी फिजूल खर्ची में, बीमारियों में फालतू पैसे खर्च हो जाते थे। तो हम इस मिनिस्ट्री से जुड़े मम्मा पापा जब भी हमें बीज बोने को बोलते थे तो हम घटी में भी बड़े बीज को बोते थे और विश्वास के साथ जो भी यहाँ से वचन बोलते थे उसके लिए हम अपने लिए रिसीव करते थे। तो हमने यहाँ बीज को बोया और हमने जैसे ही बीज को बोया उसके 15 दिन बाद हमने 80 गज का प्लाट हमने ले चुका है और पूरा फाइनल हो गया है, हमारा प्लाट मिल चुका है। कितने साल के बाद ये ऐसा हुआ आपके जीवन में? 25 साल के बाद। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो आपके कर्ज जो सालों से, जो पीढ़ियों से आपके पीछे हैं, वो गरीबी के हैं, वो कर्जे के हैं, वो कोई ब्लेसिंग ना लेने के हैं, बहुत सारे ऐसे कर्ज हैं। लेकिन जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर उन कर्ज को, उन श्रापों को आपके जीवन में से तोड़ता है। आपको नई चीजों के साथ, नए घरों के साथ, फॉरेन वीजास के साथ, अलग अलग आशीषों के साथ आपको खड़ा करता है। आप इसके हकदार होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में इन गवाहियों के लिए सब